Yeah, hi Shubham. Yeah, so today in this class we will try to cover Buddhism and Jainism, uh, two very important religions with respect to BPSC. Why? Because these two religions were born in the Magad region of Bihar. So I think this topic will be the most important topic in ancient India. So there will be special focus on this topic, and I will try. I have used multiple sources for this topic. So for Buddhism and Jainism, we will cover mainly from Nitin Singhania and the notes which I already had previously. So these two are my main sources. So you can also follow these sources. Okay. Okay. So talking about Buddhism. Okay, so it was around 563 BC when Siddharth was born. Okay, so Siddharth was born, and Siddharth, like, who was he? So he was born in Lumbini, uh, in 563 BC, and his mother was Queen Maya, and father was King Shuddhodhan. Okay, so he was the son of Maya and Sudodhan. But Maya died very soon. I think within the first month of his birth. So basically, his upbringing was done by his Mausi, like maternal aunt. So her name was Prajapati Gautami. Okay. So upbringing was done by Prajapati Gautami, and then after Siddharth became Buddha, that is at the age of 35, when he achieved Nirvana, then uh, Prajapati Gautami was also the first female disciple. Okay, so Prajapati Gautami is very important. Okay, so at Lumbini, he was born in 563 BC, and he was born in a Kshatriya clan. Okay, very important. He was Kshatriya by birth. Okay, Buddha was like Siddharth was Kshatriya by birth. And the important things about Buddhism is the fourth largest religion in this world. Okay, so obviously the number one is Christianity, like in the number of people who follow this religion. So it is first is Christianity, second is Islam, and third is Hinduism, and fourth religion is Buddhism. Okay, so again very important by this respect. And around so basically it comprises of 7% of world's population. Buddhists are 7% of the world's population. Okay, so which country has highest number of Buddhists? So it is actually China. Okay, China. And then if you see the in which Indian state, so it is Maharashtra. Again very surprising, but Maharashtra is having the most number of Buddhists in India. And what is the percentage of Buddhists in Indian population? It is 0.7%. That is 84 lakhs. So just 84 lakh people in India are Buddhists. Okay. So this was an overview about Buddhism as a religion and how it was founded. Let's delve into that. So in Lumbini, Jain में क्या difference? Okay, we will see. Jain is completely different. Buddhism is different and Jainism is different. So in this class, we are doing Buddhism and Jainism both. So obviously, we will try to finish Buddhism first, and फिर Jainism में आएगा, then we will see Jainism में क्या different है. ठीक है? So 563 Lumbini ये सब देख लिया हमने. उसके बाद फिर क्या हो रहा है? Okay, the day of his birth. The day of his birth was Vaisakh Purnima. Okay, obviously Vaisakh Purnima. Okay, and the day at which he got Nirvana, or when Siddharth became Buddha, is also was also Vaisakh Purnima only. Okay, so his birthday was equal to his day of enlightenment in terms of
Hindu calendar. Okay, Vaisakh Purnima. Okay, so let's study about his life. So basically, he was obviously from a Kshatriya clan. His father was a king, so obviously he had many privileges. But again, he was looking for like he wanted to see the world. Okay, so basically inside a palace you can't see the world with with an open view, right? So at the age of 29 he left his house riding on his horse Kanthak. Okay, so Kanthak was his horse and the charioteer was Channa. Okay, so Channa was the charioteer and Kanthak was the horse name. ओके, हॉर्स का नाम कंथक और जो चला रहा है उसे वो चन्ना है, ठीक है। तो वो क्यों निकले, मतलब वो घर से बाहर क्यों निकले? ही वेंट टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड ही वंडर्ड एज एन एसेटिक फॉर नेक्स्ट 6 years। 6 साल तक वो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड ये सब चीज। तो फिर फाइनली एट द एज ऑफ 35 अंडर अ पीपल ट्री ही गॉट निर्वाणा, इनलाइटनमेंट, ठीक है। एंड हिज फर्स्ट सर्मन्स वर लाइक फर्स्ट सर्मन्स मतलब पहला उपदेश जो उन्होंने दिया ही गेव इन सारनाथ एंड देयर वर 5 people, 5 लोग थे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइक कैसे कैसे सब कुछ हुआ इनके लाइफ में। अबाउट लाइक लेट्स सी अबाउट हिज लाइफ, ठीक है। तो ओके, लाइक वाज ही अनमैरिड और वाज ही मैरिड? लाइक जब उन्हें एट द एज ऑफ 29 व्हेन ही डिसाइडेड कि अब तो घर छोड़ देना है, लाइक let's look for the truth of the life. So was he married? Yes, he was married. Okay, he was married to Yashodhara, and he also had a son named Rahul. Okay, so Rahul भी एक बेटा भी था and he also had a wife, but like but he left everything. Okay, so basically जो 29 एज में he did गृह त्याग, which is called Mahabhinishraman. Okay, Mahabhinishraman. So this term in Buddhism of leaving your home and like leaving the world, like basically you are starting a new life. Okay, so that is called Mahabhinishraman. Okay, and so basically Buddha did Mahabhinishraman at the age of 29, and at 35 he got Nirvana. Okay, so where did he got Nirvana? Obviously, under the people tree in Bodh Gaya, but the river's name was Anoma River. Okay, Anoma River. He became near Anoma River. He became a monk. Okay, near Anoma River, he became a monk. But finally, he got Nirvana where? Near Niranjana River. Okay, Niranjana River. Okay, we get always confused. Like, what is Niranjana equal to Falgu River? Like, Falgu Nadi और Niranjana क्या same है? So at that time, it is a very big, like gray area. Okay, some people in some books you will find Niranjana is Falgu River itself. Okay, and कहीं कहीं mention किया हुआ है कि Niranjana is a small tributary of Falgu River. Okay, so either case, like you can know both. ठीक है, अच्छा। तो फिर क्या हो रहा है? Like at the age of 35, ये अच्छा, that people tree is now known as Bodhi tree. Okay, so that people tree under which he got Nirvana is now called Bodhi tree, and the village is Uruvela. Uruvela. Okay, Uruvela. तो वो जो उरुवेला विलेज था ना, वही आगे चलकर उसका नाम पड़ गया बोध गया, ठीक है। So when at that time in around मतलब वो 500 BC के टाइम दैट वो एक उरुवेला नाम का एक विलेज हुआ करता था, जो आज बोध गया हो चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद निर्वाणा जैसे ही मिलता है देन उनका नाम बुद्धा पड़ जाता है, एंड उनका फास्टिंग फिर तोड़ा किसने था? उनका फास्टिंग तोड़ा था सुजाता, अ लेडी कॉल्ड सुजाता, एंड उन्होंने खीर खिलाया था सिद्धार्थ को आफ्टर बिकमिंग बुद्धा। एंड इनका दूसरे नाम क्या है? इनका नाम तथागत और सक्य मुनि भी है। ओके, सो बुद्धा हैज गॉट तथागत भी बोलते हैं कुछ, कहीं कहीं मतलब कुछ लोग बोलते हैं इनको, और सक्य मुनि भी बोलते हैं। तो ये सब नाम भी इनका चलता है, ठीक है। अच्छा, ही ऑल्सो मेट 2 people। मतलब ये जब होता है ना, मतलब एट 29 35 के बीच में ना, ये 2 लोगों से ही मिलते हैं। एक रहता है अलार कलाम एंड एक रुद्रक रामपुत्र। ओके, सो अलर कलाम एंड रुद्रक रामपुत्र। तो ये लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो सबसे पहले जब वो अपना घर छोड़ते हैं, देन इन वैशाली ही मीट्स अलार कलाम, एंड इन रुद्र रामपुत्र ही मीट्स राजगृह, ठीक है। ये लोग के साथ लोग 6 साल करीब बिताते हैं अपना बुद्ध, बट लाइक इन सर्च ऑफ मोर ही फाइनली वो आ जाते हैं, लाइक अकेले खुद आ जाते हैं। पीपल
ट्री के अंदर तपस्या शुरू कर देते हैं, फाइनली गॉट एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो फिर जब वो जो एनलाइटनमेंट अब हो चुका है, वो बुद्धा बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब ज्ञान मिला है तो किसी को तो देंगे ना, लाइक यू हैव टू टीच अदर्स द ज्ञान विच यू हैव गॉट। सो अब उपदेश देने सबसे पहले वो सारनाथ जा रहे हैं, सारनाथ में 5 लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, और वो कौन सी जगह पे दे रहे हैं सारनाथ में, तो देयर इज अ डियर पार्क इन सारनाथ, वहां पर 5 लोगों को उपदेश दिया। ठीक है, द फर्स्ट 2 disciples were Tapassu and Bhaluk. Okay, Tapassu and Bhaluk were the first 2 disciples, and the first female disciple was obviously Prajapati Gautami, who was also Mausi of Siddharth, or maternal aunt you can also say. Okay, अब जैसे ही इन्होंने वो जो सारनाथ में जो इन्होंने जो अपने पहली बार जब उपदेश दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं बुद्धिज्म में, उसे बोलते हैं हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन, विच इज टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, तो बेसिकली धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सारनाथ में हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जब उन्हें ये सब मतलब ये सब हो गया, मतलब आफ्टर सारनाथ ही मेड अ रूल, लाइक हो सकता है कि अब 6 साल का बच्चा है, उसे उतनी समझ है नहीं, तो 6 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे मुझे महाविनिष्क्रमण करना है, लाइक आई वांट टू लीव दिस वर्ल्ड एंड मतलब अब ये जिंदगी छोड़कर मुझे एक एस्थेटिक लाइफस्टाइल जीना है, तो वुड इट बी वैलिड? नो, ऑब्वियसली उसको दिमाग ही नहीं है उतना 6 साल की उम्र में। सो बुद्धा सेड कि आप एलिजिबल महाविनिष्क्रमण के लिए तभी होगे व्हेन यू आर 15 और मोर देन 15। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट फेमस डिसाइपल्स जो कि हुए बुद्ध के, देवर आनंद एंड नुपाली। सो आनंद एंड नुपाली, इनके बारे में आगे हम लोग बहुत पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स में। तो ये है। फिर गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश अपने कहाँ दिए? सबसे ज्यादा उपदेश वो देते हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती इज द कैपिटल ऑफ कोशाला महाजनपदा। सो कौशाला का की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश दिए हैं गौतम बुद्ध ने। और किस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा दिए हैं, तो वो पाली लैंग्वेज है। ठीक है, सो पाली लैंग्वेज एंड कहाँ दिए हैं, तो श्रावस्ती। लास्ट स्टेज जो था मतलब उनका, वहां पर वो कुशीनगर में उनका बीता एट द एज ऑफ 80, अराउंड द एज ऑफ 80। उनके जो लास्ट डिसाइपल हुआ दैट इज सुपाचा, और सुभद्र भी बोल सकते हो कहीं कहीं। ठीक है, सुभद्र और सुपाचा, सो दे वर हिज लास्ट डिसाइपल्स। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 80 ही डाइड इन कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर 483 बीसी में एट द एज ऑफ 80 ही डाइड इन कुशीनगर। एंड वो कैसे मरते हैं, ही डाइज in चंद लोहार, like there is a blacksmith called as चंद उसका नाम है, और लोहार जो जुड़ गया उसके नाम के बाद, तो चंद लोहार जो था उसके घर मरते हैं। एंड देयर आर अगेन 2 फिलोसफीज कमिंग। एक है कि बाय ईटिंग पोर्क, एंड सेकंड फिलोसफी है कि मशरूम खाने से होगा उनकी मौत, लाइक देयर वाज सम इशू इन दैट, मशरूम सही नहीं होगा या फिर पोर्क सही नहीं होगा। तो ये दोनों चलता है, दोनों थ्योरी में से जो भी एग्जाम में आपका है आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज दी हुई है। ठीक है, सो यू हैव टू स्टडी बोथ एक्चुअली। ओके सना, yeah, you can speak anything, any problem? I can see a hand raised by your name. Okay, no, okay, so ठीक है, तो इतना एकदम क्लियर हुआ, मतलब सिद्धार्थ का पूरा लाइफ क्लियर हुआ, सिद्धार्थ का लाइफ कैसे कैसे बीत रहा है। सबसे पहले लुम्बिनी में जन्म हो रहा है, एंड देन लुम्बिनी में जन्म होता है। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम, महाविनिष्क्रमण जिसे बोलते हैं हम लोग। एट द एज ऑफ 35 उन्हें निर्वाणा मिलता है, एंड सिद्धार्थ बिकम्स बुद्ध एट द एज ऑफ 35। उसके बाद फिर उन्हें पहला ज्ञान देते हैं, कहाँ पर, सारनाथ में देते हैं, विच इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। एंड देन फाइनली ही डाइज इन कुशीनगर। ठीक है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड महापरिनिर्वाणा। ठीक है, जो उनकी डेथ है उसको महापरिनिर्वाणा भी बोलते हैं। ठीक है, तो पता है बुद्धिज्म के 4 पिलग्रिम साइट्स भी बन गए, यही 4 साइट्स। सबसे पहला साइट है लुम्बिनी, दूसरा साइट है गया, तीसरा है सारनाथ, और चौथा है कुशीनगर। So if someone will ask you what are the 4 holy pilgrim sites which Mahayan has to, like Mahayan would like to visit, or like has to visit in his lifespan, so it is these 4 places. Okay, Mahayan and Hinayan we will do it later. Okay, so no problem in that. ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी। उसके बाद एक कुछ चीजें और देख लेते हैं हम लोग, तो कुछ चीज और देख लेते हैं। देर आर 3 रत्न होते हैं, त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म के। त्रिरत्न ये एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा क्वेश्चन दे देगा 1 2 3 दे देगा, चौथा कुछ और दे देगा, बोलेगा कौन त्रिरत्न नहीं है।
सो त्रिरत्न क्या होगा? एक तो बुद्धा हिमसेल्फ, द इनलाइटेंड वन। बुद्धा का मीनिंग क्या होता है? द इनलाइटेंड वन, ठीक है। दूसरा है धम्मा। धम्मा बेसिकली द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, the doctrine of Buddha, okay, and then Sangha. Sangha is what? A group, a monastic order, basically a group of people. You can say as Sangha, okay. So these three are Triratna, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स दिए, जिंदगी के 4, ऐसे कह सकते हो, जिंदगी के 4 सत्य बेसिकली, विच इज ऑल्सो कॉल्ड 4 अर्य सत्यनी। 4 अर्य सत्यनी। सो अर्य सत्यनी क्या है अब? तो द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज माइजरी, दुख, ठीक है। दुख, दुख इज पहला सत्य ऑफ लाइफ। द सेकेंड इज समुदाय, कॉजेज ऑफ माइजरी, दुख क्यों होता है, ओके, द सेकेंड। द थर्ड इज दुख निरोध, सेसेशन ऑफ माइजरीज, माइजरीज को खत्म कैसे करना किया जाए, ठीक है। एंड चौथा इज मार्ग, पाथ, ओके। सो द रोड फॉर सेसेशन, मतलब दुख खत्म करने का रास्ता, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, जो ये मार्ग है, मार्ग कैसा हो सकता है? लाइक दुख खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है? तो 8 रास्ते हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। देयर इज अष्टांगिका मार्ग, ओके। सो बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं कि मतलब 8 रास्ते हैं फॉर द सेसेशन ऑफ माइजरीज। तो वो अष्टांगिका मार्ग क्या है भाई? तो राइट रिजॉल्व, ओके, राइट रिजॉल्व। इतना आठों एकदम याद करने रखने का जरूरत नहीं है, मतलब बस आई एम टेलिंग यू कि अष्टांगिका मार्ग होता है, एक बार बता दे दूंगा, देन इट विल बी देयर समवेयर, ठीक है। तो राइट रिजॉल्व, सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व, रिजॉल्व सही होना चाहिए आपका। राइट स्पीच, तो सम्यक वाक। सम्यक मतलब क्या होता है? राइट, ठीक है। तो बुद्धिज्म में ये जो 8 अष्टांगिका है ना, उसका पहला लेटर क्या होगा? सम्यक होगा, ठीक है, सम्यक। उसके बाद जुड़ते जाएगा। रिजॉल्व को हम लोग बोलते हैं संकल्प, ठीक है। तो सम्यक संकल्प, ठीक है। राइट स्पीच, सम्यक वाक। वाक बेसिकली वाक्य को वाक समझ जाओ, ठीक है। राइट कंडक्ट, तो कर्मंत बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली सम्यक कर्मंत। राइट लाइवलीहुड, तो सम्यक अज्व, अज्व, ठीक है। फिर राइट एफर्ट, तो तुम्हारा सम्यक व्यायाम। एफर्ट को व्यायाम बोला गया है बुद्धिज्म में, ठीक है। उसके बाद राइट माइंडफुलनेस, तो दैट इज सम्यक स्मृति। राइट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज सम्यक समाधि। एंड फाइनली राइट व्यूज, आपके व्यूज सही होने चाहिए, दैट इज सम्यक दृष्टि। तो ये आठों याद करने की जरूरत नहीं है, बस अष्टांगिका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज द पाथ फॉर सेशन ऑफ माइजरीज, माइजरीज खत्म करने का एक रास्ता, एक पथ। तो 8 तरीके से आप माइजरीज को अपना खत्म कर सकते हैं। रिजॉल्व सही कर सकते हो, अपना स्पीच सही कर सकते हो, अपना व्यूज सही रख सकते हो, ठीक है। अपने लाइफ जिंदगी का जो रूटीन होता है, लाइवलीहुड होता है, वो सही रख सकते हो। एफर्ट अपना सही डायरेक्शन में एफर्ट दो। ऑल एवरीथिंग मेक्स लॉजिक, राइट। राइट, सही जगह आपका ध्यान होना चाहिए, या फिर ध्यान एकदम सटीक जगह होना चाहिए। माइंडफुलनेस होना चाहिए आपका, स्मृति बेसिकली, ठीक है। तो ये सब है। अच्छा, फिर त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या होता है भाई? तो बुद्धिज्म में 3 बेसिकली देयर आर 3 राइटिंग्स, और मे बी यू कैन से 3 होली राइटिंग्स। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, एंड तीसरा है अभिधम्मा पिटक। तो ये कैसे कैसे आता है वो हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं विनय पिटक में है क्या। तो विनय पिटक डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मॉन्क्स। विनय पिटक इज मोर अबाउट द मॉन्क्स, कि मतलब मॉन्क्स को कैसा लाइफस्टाइल जीना है, ठीक है। बेसिकली मॉन्क्स वर कॉल्ड भिक्खूज, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे दे वर कॉल्ड भिक्खूज, एंड द नन्स वर कॉल्ड भिक्खुनीज, ओके, द नन्स वर कॉल्ड भिक्खुनीज, okay, so bhikkhu and bhikkhunis. An account of life and teachings of the Buddha is also given, ठीक है। बुद्धा की जिंदगी और उनकी उनके जो उन्होंने उपदेश दिए वो भी गिवन है इन विनय पिटक। फिर ठीक है, फिर सुत्त पिटक इज धम्मापदा, द लॉ पाथ, समरी ऑफ बुद्धास यूनिवर्सल टीचिंग, ठीक है। तो धम्मा पिटक इज मोर अबाउट, मतलब समरी है बेसिकली ऑफ बुद्धास यूनिवर्सल टीचिंग्स, ठीक है, जो सबके लिए लागू होता है, नॉट ओनली द मॉन्क्स, सबके लिए, ओवरऑल whoever follows बुद्धिज्म और is interested to know about बुद्धिज्म, ओके। फिर अभिधम्मा पिटक, अभिधम्मा पिटक में क्या है? बुद्धिस्ट फिलोसफी प्लस एथिक्स है, ठीक है। एथिक्स क्या होना चाहिए, मोरालिटी, ये सब के बारे में लिखा हुआ है, और एवोल्यूशन कैसे हुआ बुद्धिस्ट फिलोसफी का, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आपका कहाँ? अभिधम्मा पिटक में।
So let's see the Buddhist council. So basically favorite part for every examination, यूपीएससी बीपीएससी जो है, ये जो चार काउंसिल हुए थे ना, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. चारों का आपको एकदम थरो नॉलेज होना चाहिए, एकदम रट के हो जाएंगे क्लास में, ठीक है. तो फर्स्ट काउंसिल, बुद्धिज्म में चार काउंसिल हुए, ठीक है. तो आप अगर टाइमलाइन देखो ना, तो 563 में बुद्ध का जन्म होता है एंड 483 बीसी में उनकी डेथ हो जाती है. 483 बीसी में उनकी डेथ हो जाती है. जैसे ही डेथ हुई वैसे ही फर्स्ट काउंसिल कॉल कर लिया जाता है, बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल बाय अजातशत्रु, ठीक है. तो 483 बीसी में क्या होता है, राजगीर में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, ठीक है. और ये कहाँ होता है, इट वाज हेल्ड एट सप्तरनी केव्स के पास होता है. एंड इसका पैट्रन कौन रहता है, किंग कौन रहता है इस टाइम, अजातशत्रु रहता है. एंड चेयरमैन कौन रहता है, महाकश्यप रहता है, ठीक है. महाकश्यप रहता है. तो इसमें होता क्या है, मतलब इस सेशन में काम क्या होता है बुद्धिस्ट काउंसिल में. तो उपाली रिसाइटेड विनय पिटक विच कंटेन्स द रूल ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर, ठीक है. उपाली ने रिसाइट किया विनय पिटक को, और आनंद क्या करेंगे, आनंद विल रिसाइट द सुत्त पिटक. ओके, आनंद विल रिसाइट द सुत्त पिटक containing the great collection of Buddha's sermons and matter of doctrine and ethical beliefs, ठीक है. ये सब है. तो उपाली ने क्या रिसाइट किया, उपाली ने रिसाइट किया आपका ये विनय पिटक, एंड आनंद ने रिसाइट किया सुत्त पिटक, ठीक है. सो ये इंफॉर्मेशन हो गया हमारा. अजात शत्रु इज द किंग, महाकश्यप इज द चेयरमैन. ईयर है 483 बीसी. काम क्या हुआ, उपाली ने रिसाइट कर दिया विनय पिटक और आनंद ने रिसाइट कर दिया सुत्त पिटक, ठीक है. राजगीर में हो रहा है. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इट इज हैपनिंग इन वैशाली, ठीक है. वैशाली में हो रहा है ड्यूरिंग काल अशोक, 383 बीसी. एकदम 100 साल का बस एग्जैक्ट गैप है एकदम, ठीक है. 383 बीसी में हो रहा है ड्यूरिंग काल अशोक. काल अशोक इज द किंग एंड द चेयरमैन इज सबा कमी. ओके, सबा एंड देन यू कैन सबा कमी. ओके, सबा कमी. यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि मेनली ड्यू टू 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स अंडर द विनय पिटक, ठीक है. विनय पिटक में जो 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थे उनको उनके डिस्कशन के लिए ये कॉल किया गया था, ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है. तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो जो 100 साल पूरा हुआ ना बुद्ध के डेथ का, उसको कमेमोरेट करने के लिए बेसिकली ये काइंड ऑफ बरसी कह सकते हो, ठीक है. उसके बाद फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो सबसे फेमस है, एग्जाम में भी सबसे ज्यादा फेमस है क्वेश्चन आने के लिए, एट पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्रा में हो रहा है. पाटलिपुत्रा क्या है, मगध का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी. मतलब अगर आप ऐसे तो सबसे पहला कैपिटल मगध का रहा राजगृह, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम के लिए कौन सा कैपिटल रहा, दैट इज पाटलिपुत्र, ठीक है. वैशाली बहुत कम टाइम के लिए रहा है, राजगृह बहुत टाइम के लिए रहा है शुरू में, और फिर पाटलिपुत्र बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहा है, ठीक है. मतलब पाटलिपुत्र सबसे ज्यादा टेन्योर के लिए रहा है बुद्धिस्ट कैपिटल. बुद्धिस्ट नॉट ओनली बुद्धिस्ट कैपिटल, लाइक इट वाज द कैपिटल ऑफ मगध. जितने भी एम्पायर्स रहे दे मेड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल, मैक्सिमम ऑफ देम, ठीक है. तो ये किंग अशोका द ग्रेट के टाइम ये रहा. एंड मुगली पुत्तीसा वाज द चेयरमैन, ठीक है. अशोक के टाइम ये था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मुगली पुत्तीसा वाज द चेयरमैन. एंड मुगली पुत्तीसा इज आल्सो द कंपाइलेशन. इन्होंने कंपाइलेशन किसका किया, अभिधम्मा पिटक का भी. सो बेसिकली यू कैन रिमेंबर मुगली पुत्तीसा फॉर दैट आल्सो. तो कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्मा पिटक टुक प्लेस ड्यूरिंग थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है. फिर चौथा कब होता है, तो चौथा होता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 72 एडी में, ठीक है. अब बीसी खत्म हो गया, एडी चालू हो गया है. 72 एडी में हो रहा है, कुंदलवन में हो रहा है. कुंदलवन इन कश्मीर, कुंदलवन इन कश्मीर में हो रहा है. और किंग कनिष्क है उस वक्त, कनिष्क है किंग. एंड चेयरमैन है वासुमित्रा. वासुमित्र इज द चेयरमैन, किंग इज कनिष्क. एंड इसमें क्या रिजल्ट हो रहा है, इसमें रिजल्ट हो रहा है डिविजन ऑफ हीनायान एंड महायान. बुद्धिज्म को दो सेगमेंट्स में तोड़ दिया गया, हीनायान में और महायान में, ठीक है. फिर अश्वघोष, द डेप्यूटी ऑफ वासुमित्र, पार्टिसिपेटेड इन दिस काउंसिल एंड ऑल द डेलिब्रेशंस वर मेड इन संस्कृत, ठीक है. समझ रहे हो, अभी तक क्या था, मतलब अशोक के टाइम तक क्या था, मोस्टली जितने भी बुद्ध के लिखे हुए थे चीजें वो सब पाली लैंग्वेज में थी, राइट. उन्होंने उपदेश भी पाली में मैक्सिमम दिया है. फिर अशोकन पिलर्स भी कहीं कहीं है, तो वहां पे पाली लैंग्वेज हम लोग को दिखा है मैक्सिमम, जो कि इस एरिया में हम लोग को मिला ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस काफी. लेकिन अब क्या हो रहा है, जो 72 एडी में जो लिखा गया है कनिष्क के टाइम, वो संस्कृत लैंग्वेज इज द मीडियम, संस्कृत इज द मीडियम. और फिर वन मोर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट श्रीलंका ड्यूरिंग दिस टाइम. इसी टाइम के आसपास एक बेसिकली श्रीलंका में भी कुछ हो रहा है, बट वो हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है.
श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंकन मोनास्ट्री बना था ड्यूरिंग समुद्रगुप्त, और श्रीलंका में जाकर एक बुक कंपाइल हुई थी विच इज महावामशा। तो महावामशा श्रीलंकन टेक्स्ट है, और एक मोनास्ट्री बनी थी समुद्रगुप्त के वक्त ड्यूरिंग, मतलब श्रीलंकन मोनास्ट्री बनी थी बोध गया में, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो दैट इज दैट, ठीक है। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर आप मतलब एक बार आप खुद से बुक से भी, एक बुक में भी सब जगह होगा, दूसरे में भी होगा, नितिन सिंघानिया में तो ऑब्वियसली होगा। सो ये एकदम, ये तो इन चारों सब कुछ होना चाहिए आपका, चेयरमैन, किंग, ईयर, काम क्या हुआ, ये सब होना चाहिए यार, ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों होता क्या था, मतलब हीनायान और महायान, मतलब दो सेक्शन तो हो गया, लेकिन हीनायान क्या है, महायान क्या है, ठीक है। सो हीनायान का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है, लेसर व्हीकल। लेसर व्हीकल, इसका मतलब, इसका क्या मतलब होगा, लेसर व्हीकल मतलब थोड़ा सा लीनियंट है ये, ठीक है। हीनायान इज अ बिट लीनियंट, ठीक है। वेट, आई विल जस्ट, ठीक है। सो हीनायान इज अ बिट लीनियंट थोड़ा, एंड महायान में क्या है कि आप बेसिकली दे आर लाइक लीनियंट कैसे, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। कि ये लोग जो है ना, ये लोग बुद्ध को फॉलो करता है, एंड दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं ये लोग, एंड दे बिलीव इन इंडिविजुअल सैल्वेशन। इंडिविजुअल मतलब इनका अल्टीमेट एम क्या है कि हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, अपने खुद खुद मेडिटेट करेंगे, एंड वी विल बी लाइक वी विल, हम लोग अपने आप को बेसिकली सही कर रहे हो, राइट। लेकिन महायान की क्या फिलोसफी है ना, इनका फिलोसफी है सम्यक संबुधा। सम्यक मतलब पता है, राइट। बेसिकली इनको यूनिवर्सल सफरिंग खत्म करना है, इनको यूनिवर्सल लिबरेशन चाहिए फ्रॉम द सफरिंग ऑफ ऑल बींग्स, ठीक है। सो दे आर बेसिकली थोड़ा सा नॉन ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं ये लोग। एंड जो ये लोग है ना, मतलब महायान है ना, इनके लिए ये लोग आइडल वर्शिप भी करेंगे, एंड इनके लिए वो जो चार पिलग्रिम साइट्स है ना बुद्ध के, वो भी जाना इनकी जिंदगी में लगभग काइंड ऑफ कंपलसरी होता है, ठीक है। जैसे कि इस्लाम में देयर इज ना कि मक्का जाना इज नॉट वेरी कंपलसरी, बट स्टिल लाइक यू शुड गो, ऐसा कुछ है। तो वैसा ही इनके यहाँ लाइक ये जो चार साइट्स हो गए ना बुद्धा के, इनको जाना जाना चाहिए, दे आर सेड टू गो, ओके। सो प्रोमिनेंट महायान टेक्स्ट क्या क्या हो गए, लोटस सूत्रा एंड महावामसा। जो महावामसा जो मैंने बोला श्रीलंकन टेक्स्ट है, और लोटस सूत्रा, ये दोनों महायान टेक्स्ट हैं, ठीक है। और ये जो महायान है ना, दे आर द प्रोमिनेंट सेक्शन अभी अभी के टाइम पे। जो भी बुद्धिस्ट हैं, अराउंड 53.2% ऑफ देम आर महायान बुद्धिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो जो 7% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो बुद्धिस्ट है, उसमें से 53.2% इज महायान। एंड हीनायान अपने ट्रू फॉर्म में अब एग्जिस्ट नहीं करता है ज्यादातर, ठीक है। नो वन इज अ वेरी लाइक, अब प्योर हीनायान शायद ही कोई होगा, ठीक है। बट एम्पेरर अशोक वॉज हीनायान, ठीक है। एम्पायर अशोक वो जो थे वो हीनायान सेक्ट से कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उस वक्त वैसे डिवीजन हुआ भी नहीं था, डिवीजन तब हुआ है कनिष्क के वक्त हुआ है। लेकिन तब भी जो उनका जो उनकी जो चीजें जो वो करते थे, लाइक दैट रिजेंबल्स मोर टू द हीनायान सेक्ट दैन द महायान, ठीक है। ये है। उसके बाद अल्टीमेट एम ऑफ हिनायान इज निर्वाणा। अल्टीमेट एम हिनायान का क्या है, निर्वाणा, ठीक है। और इनका अल्टीमेट एम क्या है, सम्यक संबुधा, बेसिकली कि सबको, मतलब सिर्फ खुद को इनलाइटन नहीं करना, पूरी दुनिया को इनलाइटन करना है, ओके। सो बेसिकली ये लोग हैं। और बुद्धि सत्वा का कॉन्सेप्ट है, बुद्धि सत्वा का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बुद्ध जैसा नेचर, ठीक है। तो ये सब है बातें, ये दोनों में डिफरेंसेस भी मैंने करा दिए, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी हमारे सोर्सेज क्या क्या है, लाइक इन बीपीएससी देयर आर मेनी सोर्सेज फॉर बुद्धिज्म, तो वो देख लेते हैं क्या है। हाँ, सो द एक सोर्स है अंगुत्तरा निकाया। अंगुत्तरा निकाया इज ANGUT डबल TARA, अंगुत्तरा निकाया, NIKAYA, निकाया, ओके। सो ये क्या है, बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट द रिपब्लिक एंड मोनार्कीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच गिव्स दिस आइडिया अबाउट बिहार, ठीक है। बिहार के जो रिपब्लिक प्लेसेस थे, जैसे कि देयर वर सम लाइक वज्जी वज्जी महाजनापदा जो थी ना,
कल का क्लास जो आप लोग मिस किया होगा वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 16 महाजनापदास के बारे में मैंने डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, तो जो वज्जी का एक्चुअल पोजीशन क्या था, गंगा रिवर ऐसे है ना, तो गंगा रिवर ऐसे है, देन ऊपर नॉर्थ बिहार, दैट इज वज्जी, दिस इज वज्जी, ओके। एंड ये जो आपका नीचे का एरिया दैट इज मगध, ओके। तो जो वज्जी था दैट वाज काइंड ऑफ अ रिपब्लिक। वहां पे क्या था, मतलब वहां पे बहुत से छोटे छोटे डिविजन हुआ करते थे, जिसके हेड को राजा ही बोलते थे, लेकिन दे ऑल वर काइंड ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, लेकिन फिर मगध, नीचे मगध तो मगध था, मतलब मगध में उस टाइम हरियंका डायनेस्टी ये सब थी शत्रु के वक्त। सो दे वर नॉट, दे वर मोनार्क्स, ओके। तो ये है एक अंगुत्तरा निकाया वाज द फर्स्ट टेक्स्ट जो कि हम लोग को आइडिया देता है अबाउट द रिपब्लिक एंड द मोनार्क्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फिर है विनय पिटक एंड दीघा 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 निकाया, ओके। दीघा निकाया, निकाया इज सेम, ऊपर वाला निकाया और पहला दीघा, तो दीघा निकाया एंड विनय पिटक, ये दोनों बताता है अबाउट मगध एंड वैशाली। ठीक है, मगध एंड वैशाली का पूरा हिस्ट्री बता रहा है कि मगध कैसे कैसे फॉर्म हुआ, हुआ द रूलर्स, ये सब बता रहा है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। फिर दीपा वंशा एंड महावंशा, दीपा वंशा एंड महावंशा दोनों सेलोन में हुआ कंपाइल। सेलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंका को पहले हम लोग क्या बोलते हैं, सेलोन बोलते हैं, मतलब CEYLON, सेलोन। तो 5th सेंचुरी एडी में, मतलब 5th सेंचुरी एडी, बहुत बाद में ये कंपाइल हुआ है इन श्रीलंका, दीपा वंशा एंड महावंशा। एंड ये क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स इन प्री मॉडर्न पीरियड बता रहा है, मौर्य के पहले जो डायनेस्टीज हुए, जो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, तो उसमें उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, फिर एक और टेक्स्ट है अशोका, अशोका वदना एंड दिव्य वदना, अशोका वदना एंड दिव्य वदना। दिस गिव्स अस अबाउट, दिस टेल्स अस अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ अशोक। ठीक है, तो ये 4 फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और चारों के चारों बीपीएससी में आए हुए हैं। These all 4 books have been like कि बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं ये चारों बुक्स, तो कहीं ना कहीं बुक्स से आता ही है क्वेश्चन। और ये चारों बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट के भी हैं और ऊपर से मगध के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों बुक। ठीक है, क्या क्या होगा रिवाइज करके एक बार। तो अंगुत्तरा निकाया, अंगुत्तरा निकाया टेल्स अबाउट कि कौन कौन से रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एंड देन दीघा निकाया एंड विनय पिटक टेल्स अस अबाउट द मगध एंड वैशाली में उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। ठीक है, मगध एंड वैशाली की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। दीपा वंशा एंड महावंशा श्रीलंका में कंपाइल हुआ है एंड इट टेल्स अस अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स इन प्री मॉडर्न एज, प्री मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से किंग कैसे कैसे आए उसके बारे में बता रहा है। एंड अशोका वदना एंड दिव्य वदना टेलिंग अस अबाउट अशोका, अशोक का हिस्ट्री एंड अशोक ने क्या क्या किया। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो बुद्धिज्म में हम लोग यहाँ तक, ये यहाँ तक रखते हैं भी हैं। ठीक है, बुद्धिज्म में इतना हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जैनिज्म में। तो जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म में हमने देखा कि निर्वाणा हो रहा है एंड वी आल्सो गॉट टू नो अबाउट क्या जीवन के क्या सत्य हो सकते हैं, क्या सच हो सकता है, ये सब देखा हमने। अब जैनिज्म में क्या क्या होता है, तो जैनिज्म में देयर आर 24 तीर्थंकर्स। ठीक है, द फर्स्ट तीर्थंकर इज ऋषभ देव। ठीक है, उनके 2 बच्चे होते हैं, वन इज भरत एंड सेकंड इज बाहुबली। ठीक है, सो बेसिकली ऋषभ देव के 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, वन इज भरत एंड वन इज बाहुबली। सो यू कैन नाउ इमेजिन कि सब जो टर्म आता है ना फिल्म्स में, मतलब महा लाइक बाहुबली एंड ये सब कहाँ से आता है। ओके, सो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, 23rd तीर्थंकर इज पारसनाथ। हम लोग ने पढ़ा था झारखंड में भी, तो पारसनाथ और परसवानाथ भी बोलते हैं। तो पारसनाथ 23rd तीर्थंकर थे एंड 24th was महावीर स्वामी who was the actual founder, मतलब who is also said to be the actual founder, महावीर स्वामी। इन्होंने 5 व्रत दिया, दिस इज कॉल्ड अनुव्रत। ठीक है, जैसे मान लो अगर व्रत है, मतलब इन्होंने 5 टीचिंग्स दिए, तो उसी को जो लोग उसको बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं एकदम, मतलब कि एकदम भाई एकदम सीरियस हैं, तो 5 महाव्रत मतलब बेसिकली दे आर वेरी विगरस, मतलब एकदम मानना ही मानना है। एंड द लीनियंट वन जो कि थोड़ा लीनियंसी के साथ मानते हैं, दे आर उनके लिए ये अनुव्रत है, 5 अनुव्रत है। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन महाव्रत एंड अनुव्रत, कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब वो चीज 5 वो जो है वो सेम चीज है, बस उसका जो लीनियंसी विल डिसाइड इट इज अ महाव्रत और अनुव्रत। ठीक है, तो पहला अनुव्रत या फिर पहला महाव्रत, ट्रुथ, सत्य। ठीक है, सत्य, सत्य, ट्रुथ। उसके बाद दूसरा है अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस।
एंड तीसरा है अस्वे, मतलब बेसिकली चोरी नहीं करना एंड लाइक नॉट टू स्टील एनीथिंग, तो अस्वे। चौथा है अपरिग्रह, विच इज नॉन पोजेशन, लाइक यू डोंट पोजेस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट, नॉट इवन योर फैमिली, नॉट इन एनीवन इन दिस, लाइक कोई चीज को भी आप पोजेस नहीं करते हो, दुनिया में आपका कुछ नहीं है, वैसा कुछ आइडियोलॉजी होगा, समझ जाओ। फिर है ब्रह्मचार्य। ओके, सो बेसिकली लाइफ टाइम लाइक ब्रह्मचार्य का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, हम लोग बस समझते हैं कि लाइक शादी नहीं करना इज ब्रह्मचार्य, बट द डेप्थ ऑफ ब्रह्मचार्य इज बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य, तो 5 चीज है। तो ट्रुथ हो गया, नॉन वायलेंस, फिर अस्वे को बोलते हैं वही जो मतलब एंड लाइक वो चोरी से है बेसिकली मतलब उसका, एंड नॉन पोजेशन इज अपरिग्रह। सो बेसिकली हिंदी टर्म याद रखना है, बिकॉज उन्होंने हिंदी में दिया था ना, जो अपरिग्रह, अस्वे, अहिंसा, सत्य एंड ब्रह्मचार्य, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। चाइल्डहुड नेम क्या था? चाइल्डहुड नेम था वर्धमान, चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमान ऑफ महावीर स्वामी, एंड ही वाज बोर्न इन कुंदग्राम, वैशाली, ठीक है। तो इनका जन्म मगध, मतलब मगध वाले एरिया में ही हुआ, वैशाली में हुआ, जो कि गंगा रिवर के थोड़े से नॉर्थ में है, ठीक है। सो 540 बीसी, सो यू कैन इमेजिन, मतलब 563 बीसी में बुद्ध का जन्म होता है एंड महावीर का जन्म होता है 540, तो बेसिकली दे आर काइंड ऑफ क्या बोलूं, कंटेम्पररी है, बट बुद्ध पहला है। लाइक अगर मान लो कोई क्रोनोलॉजी में आ गया ना तुम्हारा, कि मान लो रिलीजन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि उसे सजाओ आप क्रोनोलॉजी में कि सबसे पहले कौन आया, तो मान लो अगर दे दिया, तुम्हें दे दिया गया है बुद्धिज्म, फिर दिया हुआ जैनिज्म, फिर दिया हुआ इस्लाम, फिर दिया हुआ है सिखिज्म, तो सबसे पहले बुद्धिज्म आया है, फिर जैनिज्म, फिर इस्लाम, एंड सिखिज्म इज काइंड ऑफ वेरी न्यू, ठीक है। और ये चारों मतलब ये तीनों, मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, ये लोग कहीं ना कहीं से मतलब इंडिया में ही लोग मतलब इंडिया से इनका बर्थ हुआ है इन रिलीजन्स का, सो इसलिए ये तीनों रिलीजन तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर फादर, अब देख, इनके फादर सिद्धार्थ, इनका फादर का भी नाम सिद्धार्थ है, बट लेकिन वो सिद्धार्थ नहीं है, ऑब्वियसली कोई और सिद्धार्थ होंगे, ठीक है। तो वर्धमान इस इनका बचपन का नाम है, पापा मम्मी का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल बीपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो सिद्धार्थ इज द फादर ऑफ वर्धमान एंड मदर्स नेम इज त्रिशला और त्रिशाला, तो त्रिशला और त्रिशाला इज मदर ऑफ वर्धमान। एंड फिर जो वाइफ है ये यशोदा है, ठीक है। वहां पर क्या था, यशोधरा थी ना शायद, वहां पर उनकी जो वाइफ है यशोधरा थी, यशोधरा, और यहाँ पर यशोदा, ओके। डॉटर्स नेम इज प्रिया दर्शन, प्रिया दर्शना, ओके, और प्रियदर्शन, प्रियदर्शन। इनके दामाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दामाद क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो जमाली था, जमाली वाज हिज नेम ऑफ हिज दामाद, तो ही वाज हिज फर्स्ट डिसाइपल, मतलब जब महावीर स्वामी, लाइक जब वर्धमान विल बिकम महावीर स्वामी, तब फर्स्ट डिसाइपल विल बी जमाली, हिज सन इन लॉ, ओके। सो और फर्स्ट फीमेल डिसाइपल इनकी कौन थी, तो चंदना, ओके, चंदना वाज हिज फर्स्ट फीमेल डिसाइपल, ठीक है। और सबसे फेमस डिसाइपल्स कौन थे, तो भद्रबाहु एंड स्थूलभद्र, ठीक है। जैसे वहां पर आनंद एंड नुपाली वर काइंड ऑफ द मोस्ट फेमस डिसाइपल्स, तो यहाँ पर भद्रबाहु एंड स्थूलभद्र, ठीक है। फिर क्या होता है, इन्होंने अपने भाई के साथ डिस्कशन किया कि लाइक आई वांट टू लीव होम, तब होम घर छोड़कर मुझे कुछ करना है, मतलब लाइक आई वांट टू सर्च पीस एंड ट्रुथ, ये सब ढूंढना है। सो विद हिज परमिशन ऑफ ब्रदर एट द एज ऑफ 30, मतलब अच्छे खासे ये भी, बुद्ध 29 साल की एज में वो गृह त्याग कर रहे हैं और महावीर 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर लीविंग होम ही मेट मखाली घोषाल, ठीक है। मखाली घोषाल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मखाली घोषाल का अलग ही थिंकिंग था। उनका क्या कहना था कि जिंदगी में जो होना है वो तो होकर रहेगा, आप अपना एफर्ट दो, नहीं तो जो होना है वो होकर रहेगा। बेसिकली ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, जो मखाली घोषाल था, ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, ठीक है। उसे बोलते हैं भाग्यवादी भी बोलते हैं हिंदी में। और उन्होंने एक अलग ही रिलीजन चालू किया या फिर अलग थिंकिंग चालू किया, विच इज आजीविका कम्युनिटी। आजीविका कम्युनिटी ये मखाली घोषाल ने शुरू किया था। एंड आगे चलकर जब हम मौर्य पढ़ेंगे ना, मौर्य एम्पायर, तो उसमें एक बहुत फेमस राजा होंगे बिंदुसार, तो बिंदुसार भी उसे फॉलो करेंगे, इस रिलीजन को, आजीविका कम्युनिटी को। और जहानाबाद एक जगह है जहां पर मैं जाने वाला हूँ मैं भी, तो वहां पर एक हिल्स है, बराबर हिल्स, तो वहां पर कुछ केव्स हैं, मतलब बराबर हिल्स में कुछ केव्स बने हुए हैं। वहां पर क्या है ना कि कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन है, इस पे कि लिखा हुआ है कि जो आजीविका कम्युनिटी को ना वहाँ के कुछ मतलब वहाँ के जो हिल्स दिए गए थे दान में, ठीक है, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अशोक, और अशोक के बाद दशरथ के टाइम भी, दशरथ जो कि उनका
उनके ही मतलब आने वाले वंश में रहे, अशोक के ही वंश में रहे, ओके, इन द मॉडर्न एम्पायर के ही आगे आने वाले रूलर्स में से एक रहे दशरथ। तो ये लोग उन्हें आजीविका कम्युनिटी को दिया था वो हिल्स, ठीक है। तो ये सब हम आगे करेंगे। तो ठीक है, तो ही मेट मखाली घोषाल, लेकिन मखाली घोषाल तो कुछ ज्यादा ही भागे वाले थे। बेसिकली ही सेड कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, लाइक जो लिखा है वो तो हो ही नहीं रहेगा, डेस्टिनी इज डेस्टिनी। बट ही, लेकिन ही डिडंट अग्री, ऑब्वियसली ही वोंट। तो उसके बाद वर्धमान सेड कि नहीं, ही वाज लाइक, वर्धमान वाज अ कर्मा बिलीवर। वर्धमान मतलब बेसिकली अगर आप मेहनत करते हो तो कुछ भी कर सकते हो, उनका ये लॉजिक था। और तो फिर क्या होता है, महाज्ञान की प्राप्ति इनको 12 साल की तपस्या करने के बाद मिलती है, ओके। सो 12 years, 12 साल तक ही वाज लाइक इन डूइंग मेडिटेशन एंड ऑल, मतलब ये सब कर रहे हैं। एंड फाइनली इन झुम्बिक ग्राम, in Jhumbik near Rijupalika river. In Jhumbik near Rijupalika river, he attained enlightenment. मतलब समझ रहे हो, 30 साल और प्लस और 12 कर दो, और 6 साल ये साथ में रहे, इनके साथ भी, मखाली घोषाल के साथ भी रहे लगभग 6 साल, काइंड ऑफ अराउंड 48 years, ठीक है, ये हो चुके हैं ये लगभग, ओके। लेकिन ये 42 बोल रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, ये 12 साल का जो ये दिया हुआ है 12 साल, इसमें मतलब वो सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है ना। सो एट द एज ऑफ अराउंड 42 ही इज अटेनिंग कैवल्य। कैवल्य क्या बोलते हैं, मतलब बुद्ध में जो निर्वाणा था वो जैनिज्म में कैवल्य हो गया, ठीक है। सो अब इनलाइटनमेंट ये रिसीव कर रहे हैं, कैवल्य को रिसीव हो रहा है। उसके बाद आफ्टर कैवल्य, कैवल्य वर्धमान गॉट 3 नेम्स, इनको 3 नामकरण हो गया इनका। केवलिन इनको बोल दिया गया, केवलिन मतलब सुप्रीम ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट मतलब पूरे ओमनी मतलब होता है सब कुछ, और सेंट मतलब जिसको सब कुछ का नॉलेज हो, मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको सब कुछ का नॉलेज जिसको, जिस इंसान को, दैट इज केवलिन, ओके। एंड जिन्ना, और जिन्न, तो जिन्न भी बोला गया इन्हें, विच मीन्स, जिन्न मीन्स विजेता और कंक्वेरर, हु कैन कंक्वेर योर सेंसेस, तो ही वॉज महावीर, ओके। एंड देन नीरग्रंथ, नीरग्रंथ क्या है भाई, तो फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, मतलब ठीक है, नीरग्रंथ एकदम फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। और चौथा नाम इनका चलता है अरहंत, अरहंत, यू कैन रिमेंबर विद दैट बुक अरिहंत का, जो बुक आता है बहुत सारा अरिहंत का, so, अरहंत ब्लेस्ड वन, ओके। तो ही वाज द गॉड्स ब्लेस्ड वन, ऐसा नोशन चला था, ठीक है। तो मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म क्या है रहा, जैसे कि हम लोग उसमें पढ़े थे ना कि मतलब सबसे ज्यादा बुद्ध ने जो जो टीचिंग्स दिए वो श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल की राजधानी रही। वैसे ही जैनिज्म का सेंटर रहा मथुरा, द सेंटर फॉर जैनिज्म वाज मथुरा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सरमन, इनका फर्स्ट सरमन कौन है, तो ये इन्होंने कहा दिया था, इन्होंने दिया था ऑन माउंट माउंट विपोलाचला, माउंट विपोलाचला, ओके। एंड लैंग्वेज ऑफ मोस्ट sermons was अर्धमगही, अर्धमगही, फॉर्म ऑफ प्रकृति लैंग्वेज, ठीक है, इट वाज अ फॉर्म ऑफ प्रकृति लैंग्वेज, और अर्धमगही उसके बोल बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, अर्धमगही। So if you go to that area, Gaya, Jahanabad and Patna area, so even the people they talk in Maghi language, okay, Maghi language, ठीक है। तो उसी का काइंड ऑफ एक थोड़ा प्योर फॉर्म अर्धमगही। तो उनके जो टीचिंग्स थे जितने भी जैनिज्म के वो मोस्टली अर्धमगही में थे, बुद्ध के किस में थे, पाली लैंग्वेज में थे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद महावीर के ना 11 फेमस गंधार्स हुए। गंधार्स क्या थे, तो गंधार्स वर डिसाइपल्स, डिसाइपल्स को ही गंधार बोलते हैं, ठीक है, गणधार, GAN वाला, मतलब वो हिंदी में देखोगे तो वो वाला ना, ठीक है। तो उसके बाद तो जो 11 डिसाइपल्स थे ना, उसमें से 10 डाइड, 10 डाइड, बस एक ही जिंदा रहे व्हेन महावीर डाइड, मतलब महावीर ऑब्वियसली बहुत लंबा, मतलब लंबा जिए होंगे, तभी उनके 10 डिसाइपल्स की डेथ हो गई व्हेन ही डाइड, ठीक है। उसके बाद नेम क्या हुआ, नाम जो सब जो एक इकलौता जो बचा, उसका नाम था आर्य सुदर्मन, ठीक है, आर्य सुदर्मन। सो ही बिकेम द नेक्स्ट सक्सेसर, ठीक है। तो मतलब वो काइंड ऑफ जैनिज्म को आगे लेकर गए। सो ही वाज आर्य सुदर्मन, ओके। सो ठीक है। अब इनकी डेथ कब होती है, तो डेथ होती है इनकी पावापुरी, कैपिटल ऑफ मल्ला। मल्ला कहाँ पर है, मल्ला आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हो, एकदम वो जो आपका, ये अगर गंगा रिवर है, यहाँ पर मगध है, यहाँ पर वज्जी है, तो वज्जी से थोड़ा सा और ऊपर है मल्ला, मतलब आप समझ सकते हो नेपाल में मोस्टली है, और थोड़ा बहुत इंडिया में भी पड़ता होगा उसका टेरिटरी, ठीक है। तो मल्ला की जो कैपिटल थी पावापुरी, वहां पर डेथ होती है इनकी, महावीर की।
और व्हाट इज द एज, एज 72 ही है, एज 72 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। और 300 बीसी, तब भी मतलब उतना भी लंबा नहीं जिए, बट स्टिल लाइक इनकी 10 डिसाइपल्स की डेथ हो जाती है व्हेन ही डाइड। सो यू कैन इमेजिन, बस आर्य सुदर्मन ही एक बचता है। ठीक है, अच्छा, अब 480 वो 468 बीसी में इनकी डेथ भी हो जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो लाइक बुद्ध से पहले ही की डेथ हो जा रही है काइंड ऑफ। 463 बीसी में उनकी डेथ हो रही है, सॉरी 483 में ही हो जा रही है डेथ बुद्ध की। बुद्ध इज डाइंग अर्लियर एंड फिर बाद में ये मर रहे हैं। वो 483 बीसी में बुद्ध मर रहे हैं, 468 में जैन ये महावीर स्वामी। ओके, सो 300 बीसी, 300 बीसी ड्रॉट आता है बहुत भारी, मतलब ऐसा सूखा आता है मगध में कि लाइक पीने को पानी नहीं होता। ठीक है, उस वक्त के राजा रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द किंग एट दैट टाइम। ठीक है, तो पहला जाइज्म काउंसिल वाज कॉल्ड इन। ठीक है, तो जाइज्म काउंसिल करके मतलब टू रीच अ सॉल्यूशन, डॉट में अब क्या किया जाए। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में पहला जाइज्म काउंसिल होता है अंडर द रूलर चंद्रगुप्त मौर्य। चेयरमैन वाज स्थूलभद्र। तो मैंने क्या बताया था, स्थूलभद्र एंड भद्राबाहु वर द टू फेमस डिसाइपल्स ऑफ महावीर स्वामी। सो चेयरमैन था स्थूलभद्र। और इसमें काम क्या हुआ ना, जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन इज श्वेतांबर एंड वन इज दिगंबर। श्वेतांबर कौन है, दिगंबर कौन है? तो श्वेतांबर वो थे हु स्टेड इन मगध। ठीक है, जिन्होंने बोला कि हम तो मगध में ही रहेंगे चाहे जो हो जाए, अगर सूखा पड़े वी लाइक इवन इफ वी डाई इट्स ओके, बट आई विल डाई एट माय ओन मदरलैंड, राइट। और दूसरे जो सेक्शन थे दिगंबर जैन, दे वर लाइक कि नहीं भाई, लाइक if like we can come back obviously anytime, तो अभी जब सिचुएशन सही नहीं है then let's move। तो दिगंबर went to Karnataka and who took them, the leader was Bhadrabahu। like Bhadrabahu is representing दिगंबर section and श्वेतांबर section को स्थूलभद्र कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है। ठीक है, और इसमें एक और क्या काम हुआ, कंपाइलेशन हुआ 12 अंगाज का। ठीक है, अंगाज आर द स्पिरिचुअल टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैसे वहां पर था ना आपका बोधिसत्वास थे एंड फिर बहुत सारी टेक्स्ट थी ना, मतलब वहां पर तुम्हारा धम्मास थे। ओके, लाइक विनय पिटक था, विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्मा, ये तीनों सबसे मतलब फेमस स्पिरिचुअल टेक्स्ट है बुद्धिज्म के, और जैनिज्म के 12 अंगाज हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है ना, जोट आया है, जो भद्रबाहु है वो दिगंबर्स को लेकर चला गया कर्नाटका। तो कर्नाटका में कौन सी जगह पे लेकर लेकर गया, श्रावण बेलागेला और बेलागोला। श्रवण श्रवण बेला गोला। ओके, श्रवण बेला गोला में लेकर जा रहा है, अ प्लेस इन कर्नाटका। एंड चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ चला जाता है। द किंग हिमसेल्फ गोज विथ भद्रबाहु। एंड ऑब्वियसली अब वो जा रहा है तो किसी को तो बताए बनाएगा ना वहां का, मतलब पाटलिपुत्र का राजा। सो ही मेड हिज सन बिंदुसार हिज सक्सेसर। बिंदुसार को राजगद्दी बिठाकर ही लेफ्ट। ठीक है, एंड उसके बाद 298 मतलब 300 बीसी में वो मतलब निकले थे मगध से। 298 बीसी में फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य डाइड। चंद्रगुप्त मौर्य डाइड इन 298 बीसी इन लाइक डाइड आउट ऑफ स्टार्वेशन। मतलब वो भूखे रहकर मतलब वो खुद मरे। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्ले खाना, सल्ले खाना हम लोग बोलते हैं टर्म, लाइक डाइंग आउट ऑफ स्टार्वेशन। बेसिकली दैट इज अ गुड वे टू डाई इन जैनिज्म। ठीक है, ठीक है, लेट्स जस्ट आई वांट टू पॉइंट आउट सम अदर पॉइंट्स आल्सो। ठीक है, हाँ, तो श्वेतांबर और दिगंबर में और डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि एक डिफरेंस तो था कि मतलब श्वेतांबर मगध में रह गए, स्थूल भद्र वाज द लीडर, और वहां पर दे लेफ्ट टू कर्नाटका, श्रावण बेला गोला। ओके, दूसरा डिफरेंस था श्वेतांबर्स अडॉप्टेड व्हाइट ड्रेस। ठीक है, श्वेतांबर लोग हमेशा, जो जैन देखते होगे ना, हमेशा व्हाइट ड्रेस में घूमते हैं। इफ यू गो टू माउंट आबू यू विल गेट मेनी श्वेतांबर्स जो कि अभी भी दे रोम इन व्हाइट ड्रेसेस। ओके, फिर दिगंबर दे रिमेन नेकेड। ठीक है, दे रिमेन नेकेड मतलब कुछ कपड़े नहीं पहनते थे दिगंबर्स। ओके, उसके बाद स्थूलभद्र वाज द लास्ट मैन हु न्यू ऑल द 14 ओल्ड टेक्स्ट्स ऑफ जैनिज्म। उसके बाद जो ये जो फर्स्ट काउंसिल होता है ना, उसमें 10 पर मतलब जो 14 टेक्स्ट थे, पूर्वास थे, जो स्थूलभद्र को पता था, 14 में से 10 को कंपाइल कर दिया था अंगास में। जो 12 अंगा बने उसमें 10 को कहीं ना कहीं जगह मिल गई, लेकिन 4 अभी भी लॉस्ट है। ठीक है,
और जो 11वां अंग है उसमें, अच्छा ठीक है, तो अभी तक देखा जाए तो मतलब ये 14 में से 10 अंगा में एकदम सिक्योर है, बाकी कुछ कुछ लॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, जो कुछ कुछ नॉलेज महावीर स्वामी ने प्रोपोगेट किया था इन लोगों को, स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु, ड्यू टू सम सीक्रेसी और ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ दिस नॉलेज, इसके डर से स्थूलभद्र ने किसी को बताया नहीं था। ठीक है, और वो लॉस्ट ही हो गया, मतलब गुम ही हो गया। ठीक है, अच्छा, जैन लिटरेचर का सबसे सैक्रेड बुक कौन सा है? मतलब अंगा तो इज अ काइंड ऑफ कंपाइलेशन, ऐसे देखा जाए सब कुछ, मतलब सब कुछ है उसमें अंगा में। एक बुक है अगामा सिद्धांत, बेसिकली दैट टॉक्स अबाउट द सिद्धांत ऑफ महावीर स्वामी, तो दैट इज आल्सो वेरी सैक्रेड बुक। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये पहला काउंसिल हुआ। जैनिज्म में एक और काउंसिल होता है, सेकंड जैनिज्म काउंसिल, अराउंड 513 एडी। ठीक है, वो गुजरात में होता है, बट उसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बारे में कोई बस चेयरमैन पता है उसका, कि ये क्षमा शमन होता है, क्षमा शमन इज द चेयरमैन। और यहाँ पर जो टीचिंग्स थे ना, टीचिंग्स वो एकदम आगम, मतलब एक आगम नाम के ग्रंथ में कंपाइल किए जाते हैं इन प्राकृतिक लैंग्वेज। ठीक है, सो पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म, और जैनिज्म का लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं प्रकृति वॉज द लैंग्वेज फॉर जैनिज्म इन स्क्रिप्ट, मतलब लिखने में। और सबसे ज्यादा लैंग्वेज जिसमें कि मतलब उन्होंने महावीर ने बताया था, मतलब अपने उपदेश दिए थे, वो था अर्ध मगही। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जैनिज्म और बुद्धिज्म में, बहुत अच्छे से हमने करने की कोशिश की है। स्टिल जैनिज्म में कुछ कुछ चीजें रह गई, जैनिज्म में कुछ कुछ चीजें रह गई हैं। सो लेट्स ट्राई टू लाइक थोड़ा बहुत और देख लेते हैं जैनिज्म में। ठीक है, ठीक है, जैनिज्म में 4 टीचिंग्स होते हैं। ठीक है, जैनिज्म के 4 टीचिंग्स होते हैं, विच आर विदित, अहिंसा, सत्य, अस्त्य एंड अपरिग्रह। तो ये 4 टीचिंग पता है, ये जो 23 तीर्थंकर्स थे ना, वो लोग नहीं दिया था, मतलब इसमें महावीर इसका स्पेशल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। लेकिन जो 5वां टीचिंग जो दिया इन्होंने ब्रह्मचार्य का, वो उसके बाद फिर मतलब उसके बाद फिर इस चीज को क्या बोला जाने लगा, 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत। तो ठीक है, तो मतलब जो 4 टीचिंग थे वो पहले से थे। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि महावीर स्वामी के द्वारा दिया हुआ कौन सा टीचिंग था, दैट वाज ब्रह्मचार्य। ओके, ओके, उसके बाद 3 रत्न जैनिज्म में भी होते हैं। जैसे बुद्धिज्म में भी 3 रत्न थे ना हमारे, बुद्धा हिमसेल्फ था, एंड फिर और भी चीजें थी। तो वैसे ही जैनिज्म में भी 3 रत्न है। यहाँ पे भी वो सम्यक का कॉन्सेप्ट है, सम्यक मतलब राइट होता है, तो राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, ये तीन त्रिरत्न है जैनिज्म का। ठीक है ना, ये 3 रत्न है जैनिज्म का। और उसका क्या था, उसके 3 रत्न क्या थे बुद्धिज्म के? बुद्धा हिमसेल्फ, धम्मा एंड संघ। संघ इज ग्रुप, धम्मा इज टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एंड बुद्धा इज लाइक बुद्धा इज द इनलाइटेंड वन। ठीक है, ये था। और फिर देखा जाए तो और फिर बुक्स हैं, तो बुक्स में ऐसे ही बताऊंगा, तो मतलब बहुत ही अजीब अजीब नाम है। लाइक एक है अंतर कथा समाग्रह बाय राजशेखरा। सो आई थिंक ये हम लोग रिविजन के वक्त कर लेंगे, जब हम लोग लिख लिख के चीजों को बता पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पेन टैब। सो अंटिल देन, लाइक अभी के लिए इतना नॉलेज इज सफिशिएंट। So the special attention should be paid on the Buddhist Council, and overall एक टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धा का भी एंड महावीर स्वामी का भी। एंड इससे क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन बीपीएससी any year, like every year and any year you can expect 2 questions at least from Buddhism and Jainism. So let's find up the session for today, and let's meet tomorrow with Haryanka dynasty, like the dynasties which occurred in Magad area of Bihar. So we will try to finish till Maurya tomorrow. Thanks for joining everyone.